So, hello everyone. In previous video, we discussed about the concentration term molarity. Okay, we already discussed about the molarity. What is molarity? That is molarity denoted by capital M. It is number of moles of solute dissolved in volume of solution in liter. That is molarity. Now today we will discuss about molality. ठीक है. It is denoted by small m. Molality is denoted by capital M. And molality is denoted by small m. ठीक है. Molality क्या होगी? It is the number of moles of solute. Number of moles of solute upon में mass of solvent. Mass of solvent given in kg. So what is the difference between molarity and molality? Here it is denominator is volume of solution in liter and here is mass of solvent in kg. It means here we have to require mass of solvent, not the volume of solution. Okay, so that is the formula for the molality denoted by small m. Let us understand this concept with the help of example. Like question 1 is given that find molality of 20 gram NaOH. Okay, molality of 20 gram NaOH dissolved in 100 gram solution. Okay, in question given is 20 gram NaOH dissolved in 100 ग्राम सॉल्यूशन. इट मीन्स ये 20 ग्राम जो NaOH है ये 100 ग्राम सॉल्यूशन में डिजोल्व है. तो ये जो यहाँ पे 20 ग्राम NaOH है इट मीन्स ये अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है. अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना है? 20 ग्राम. और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है या फिर अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम. अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन वो कितना है? 100 ग्राम. और हमें रिक्वायर क्या चाहिए? अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट है, मास ऑफ सॉल्वेंट. सो मास ऑफ सॉल्वेंट विल बी सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट, क्योंकि हमें पता है दैट इज सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन. सो बेसिकली है सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट. सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट. सो मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू mass of solvent is equal to 100 minus 20, that is 80 gram. Okay, so mass of solvent is 80 gram and number of moles of solute we have to identify. Given mass is 20 gram and molar mass of NaOH is Na23, oxygen 16, hydrogen 1, that is 40 gram per mole. Okay, molar mass is 40 gram पर मोल. एक मोल में 40 ग्राम. सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विल बी इक्वल टू गिवन मास 20 ग्राम अपॉन में मोलर मास 40 ग्राम, दैट इज 1/2. सो मोलैलिटी विल बी इक्वल टू स्मॉल m नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट इज 1/2 अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट दैट इज 80 ग्राम and in kg, so divide it by 1000. So on simplifying it we get 6.25 मोलल. ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? मोलैलिटी. So that is how we have to identify, calculate the molality of the solution with the help of this formula. Clear? You got it? Let us understand another question. Question is that 0.85 gram of NH3 is dissolved in 100 ml of solution. Okay, इस टाइम क्या है? 0.85 ग्राम सॉल्यूट डिजोल्व है 100 ml सॉल्यूशन में और डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन गिवन है, मोलैलिटी निकालनी है. अब देखो यहाँ से मास ऑफ सॉल्यूशन सॉल्यूट जो है 0.85 ग्राम मेंशन है एंड इधर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है और हमें तो क्या चाहिए? मास ऑफ सॉल्यूशन. भाई सिंपल सी बात है, तभी तो मास ऑफ सॉल्वेंट निकालोगे.
तो मास ऑफ सॉल्यूशन के लिए वॉल्यूम दिया हुआ है एंड डेंसिटी फैक्टर भी गिवन है, तो यहाँ से रिलेशन हो जाएगा डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। सो सिंपली यहाँ से हम डेंसिटी गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, तो मास की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो सबसे पहले मास ऑफ सॉल्यूशन हमें कैलकुलेट करना है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा डेंसिटी इनटू में वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। डेंसिटी 1.2 गिवन, वॉल्यूम 100 ml given, so this implies 120 gram solution. And now mass of solute is 0.85 gram, so mass of solvent will be equal to 120 minus 0.85, that is 119.515 gram. Okay, so molality will be equal to number of moles of solute 0.85 of NH3. So its given mass is 0.85 and molar mass of NH3 14 into 1 into 3, 14 plus 1 into 3, that is 17. Okay, and mass of solvent, that is 119.15 gram, and we have to convert it into kg, so divided it by 1000, and on simplification we get the value of molality. Okay, so that is how molality works. अब यहाँ से बेसिकली एक टर्म आती है कि मोलैरिटी और मोलैलिटी को हम कैसे रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, कि सपोज एक क्वेश्चन में मोलैरिटी और मोलैलिटी दोनों को कैलकुलेट करना है, तो हम उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए एक तो जैसे जो इसका डेरिवेशन पार्ट है वो हम +2 स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे। फिलहाल इसका ओनली एक हमें फॉर्मूला याद रखना है, तो फॉर्मूला होगा क्या, मोलैलिटी इज इक्वल टू स्मॉल m इज मोलैलिटी इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाइड बाय मोलैरिटी, 1000 मल्टीप्लाइड बाय मोलैरिटी अपॉन में 1000 डेंसिटी माइनस मोलैरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलैरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। जैसे कि ये अभी लास्ट हमने क्वेश्चन जो किया था 0.85 ग्राम NH3 वाले में, तो उसमें मोलैलिटी सपोज उसकी क्या आ गई, x मोलैलिटी आ गई। ठीक है, x ग्राम में उसकी मोलैलिटी आ गई, या फिर मोलैलिटी हमें कैलकुलेट करनी है। सपोज उसमें मोलैलिटी गिवन है, 2 मोलर सॉल्यूशन है, तो 1000 इंटू 2, ओके, और सपोज क्या है NaOH सॉल्यूशन है 2 मोलर, तो NaOH मोलर मास 40 ग्राम पर मोल एंड डेंसिटी सपोज इसकी 1.2 गिवन थी। क्लियर, सो 1000 इंटू में डेंसिटी कितनी 1.2 माइनस मोलैरिटी कितनी, m इज मोलैरिटी दैट इज 2 and molar mass of solute 40. So that is how we can calculate molality. Okay, so we have to read this and learn this formula for the molarity and molality. Okay, now next term is normality. Normality क्या होगी, it is defined as the number of gram equivalent of solute present in 1 liter solution. ओके, यहाँ पे जैसे मोलैरिटी हमारी होती थी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर, बट यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन सेम है लीटर में। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट फाइंड आउट कर लो बस। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जो फाइंड आउट करोगे कैसे निकालोगे, तो पहले यही देखते हैं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, सो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के लिए क्या करोगे कि मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, इक्विवेलेंट वेट या मास ऑफ सॉल्यूट, ये होगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट हमने निकालना सीख लिया था, वहां पे क्या होता था कि उसके मोलर मास को n फैक्टर से डिवाइड कर दो। तो यहां से जो इसका इक्विवेलेंट वेट होगा वो क्या हो जाएगा, मोलर मास को n फैक्टर से डिवाइड कर देंगे। तो यहां से मोलर मास को n फैक्टर से डिवाइड करोगे, इक्विवेलेंट वेट आएगा। इक्विवेलेंट वेट को इसके मास ऑफ सॉल्यूट जो होगा उससे गिवन होगा, तो वहां से नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आएगा, और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को यहां पुट करेंगे तो वहां से उसकी क्या जाएगी, नॉर्मेलिटी। ठीक है, 3 स्टेप इसमें इंक्लूड होंगे नॉर्मेलिटी निकालने के लिए। क्लियर है, दोबारा रिपीट करता हूं कि नॉर्मेलिटी जो होगी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन।
अब यहाँ पे सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। और इक्विवेलेंट वेट के लिए हमने एक पिछले लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ा हुआ था कि इक्विवेलेंट वेट जो होगा वो उसके मोलर मास के डिवाइडेड बाई एन फैक्टर। एन फैक्टर क्या होगा, तीनों केस के लिए अलग अलग होगा, एसिड के लिए अलग, बेस के लिए अलग और सॉल्ट्स के लिए अलग। एसिड के लिए हमने देखा था कि H पॉजिटिव आयन कितने रिलीज करेगा, नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन। बेस के केस में नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन, और सॉल्ट के केस में टोटल चार्ज ऑन कैटायन और एनायन, टोटल चार्ज ऑन कैटायन और एनायन। ठीक है, सो ये होता था यहाँ पे एन फैक्टर। क्लियर। तो अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन करके देखते हैं जिसके बेसिस पे हम बताते हैं कि नॉर्मेलिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसे क्वेश्चन गिवन है, कॉमन क्वेश्चन है यहाँ पे कि इसके लिए मोलैलिटी भी निकालनी है और साथ ही साथ नॉर्मेलिटी भी। का सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड होता है COOH इनटू में 2H2O। ठीक है, हाइड्रेटेड यहाँ पे ऑक्सैलिक एसिड है। तो इज प्रिपेयर्ड बाई डिजोल्विंग 0.63 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। 0.63 ग्राम हमने डिजोल्व किया ऑक्सैलिक एसिड का, कितने में, 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। ओके, कैलकुलेट मोलैलिटी एंड नॉर्मेलिटी। सो देखो यहाँ पे क्या होगा, हाँ 0.63 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। तो पहले तो हम मोलर मास निकाल लेते हैं ऑक्सैलिक एसिड का। मोलर मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड क्या है, COOH डॉट 2H2O। H2O का तो कितना होता है 18, तो 2 मोल से तो कितने हो गए 36, तो इसका हो गया COOH। एक यूनिट का निकाल लो, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। एक COOH यूनिट का 12 प्लस 2 ऑक्सीजन तो 2 इंटू 16 प्लस एक हाइड्रोजन 1, और इसको 2 से मल्टीप्लाई। तो ओवरऑल इसको सिंप्लीफाई करोगे 32 एंड 12 44 145 एंड 2 90 90 प्लस 36 दैट इज 126 ग्राम पर मोल। ये इसका क्या आ गया, मोलर मास। ठीक है, किसका, ऑक्सैलिक एसिड का। क्लियर। अब इसका गिवन मास कितना है, गिवन मास ऑक्सैलिक एसिड है 0.63 ग्राम, 0.63 ग्राम। तो यहां से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं, सॉल्यूट क्या है, ऑक्सैलिक एसिड ही। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इज गिवन मास 0.63 अपॉन में मोलर मास 126। सो नंबर ऑफ मोल्स विल बी ऑन सॉल्विंग इट 0.005 मोल। ओके, अब यहाँ से फर्स्ट पार्ट में पूछा वो मोलैरिटी कैलकुलेट करनी। तो सिंपल सी बात है, मोलैरिटी दैट इज कैपिटल M नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 0.005 मोल। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहाँ से 250 सेंटीमीटर क्यूब गिवन है, और हमने यूनिट कन्वर्जन में देखा था कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 ml। इट मीन्स 250 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 250 ml। एंड इसको कन्वर्ट करोगे लीटर में तो डिवाइडेड बाई 1000, तो 0.250, तो 0.250 लीटर। तो ये इसकी मोलैरिटी आ गई 0.005 अपॉन में 0.250। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से इसकी मोलैरिटी कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, सेकेंड पार्ट नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी के लिए क्या चाहिए हमें, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। भाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो सेम होता है, नॉर्मेलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो ऑलरेडी है 0.250, बस नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने हैं। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के लिए क्या करोगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। अब इक्विवेलेंट मास के लिए क्या करोगे, इक्विवेलेंट मास इक्वल टू मोलर मास डिवाइडेड बाई एन फैक्टर।
मोलर मास इसका 126, एन फैक्टर कितने, तो COOH यहाँ पे था, यहाँ से एक ये H पॉजिटिव रिलीज होगा, एक ये, तो टोटल 2 H पॉजिटिव आयन रिलीज होंगे, दैट इज एन फैक्टर यहाँ पे इसका एसिड का क्या हुआ 2, तो डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 63। सो इक्विवेलेंट मास आ चुका है। यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट गिवन है कितना 0.63 ग्राम और इक्विवेलेंट मास 63 आ चुका है, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएंगे 0.63 अपॉन में 63, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से नंबर ऑफ क्या आ गए ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आ गए 1/100, तो इसको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को यहाँ पे पुट कर दो, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को जब यहाँ पे पुट करोगे 1/100 दैट इज 0.01। सो यहाँ से नॉर्मेलिटी जो आ जाएगी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो नॉर्मेलिटी आ गई यहाँ से ग्राम इक्विवेलेंट आए क्या 1/100 दैट इज 0.01 अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या है 0.250, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा 0.04 नॉर्मल। तो इस तरह से हम नॉर्मेलिटी को कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है? सो अब हमने जो कंसंट्रेशन टर्म्स है उसमें क्या क्या सीख लिया, मोलैरिटी, मोलैलिटी एंड नॉर्मेलिटी। क्लियर? अब जब हमने नंबर ऑफ मोल्स निकालने सीखे थे तो उसमें नंबर ऑफ मोल्स को सपोज क्या आता है कि एक सपोज मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है, इस कंटेनर में क्या है शुगर प्लस वाटर, शुगर प्लस वाटर के एक मिक्सचर है। मैंने कह दिया कि शुगर के इसके अंदर क्या है 2 मोल्स और जो वाटर है इसके अंदर क्या है 8 मोल्स, कि 2 मोल ऑफ शुगर डिजोल्व इन 8 मोल्स ऑफ वाटर। और मैं यहां पे कह दूं इसके अंदर मोल फ्रैक्शन निकालो, क्या निकालना है मोल फ्रैक्शन। तो बेसिकली अब यहां पे हम पढ़ने जा रहे हैं क्या टर्म मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि जो भी मेरे पास मिक्सचर गिवन है उसके अंदर जिस भी हमें सब्सटेंस के मोल फ्रैक्शन निकालने हो तो उस सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स अवेलेबल इन दैट मिक्सचर, दैट इज नोन एज मोल फ्रैक्शन। जैसे इसका एक एग्जांपल लेना चाहो, ये समझ लो कि एक क्लासरूम है। क्लियर? एक क्लासरूम है जिसके अंदर क्या है 26 सपोज गर्ल्स हैं, ओके, एंड 24 बॉयज हैं। क्लियर? अब मैं ये कह दूं फ्रैक्शन निकालना है, फ्रैक्शन यहां पे निकालो ऑफ गर्ल्स अमंग टोटल स्टूडेंट्स। सो फ्रैक्शन ऑफ गर्ल्स क्या हो जाएंगे अमंग टोटल स्टूडेंट्स, तो टोटल स्टूडेंट्स तो क्या होंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गर्ल्स प्लस बॉयज, और जो यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ गर्ल्स निकालना है तो कितने नंबर ऑफ गर्ल्स है दैट इज 26 अपॉन में इन दोनों का सम 26 प्लस 24 दैट इज 50, तो ये फ्रैक्शन आ गया। सिमिलरली यहाँ पे भी मोल फ्रैक्शन में होगा, जिसका भी नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन निकालना हो इसको डिनोट करेंगे x से। ठीक है, अब सपोज शुगर का निकालना है, शुगर को मैं a कंपोनेंट कह दूं, इसको b, सो x से इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ a अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स Na प्लस Nb, 2 कंपोनेंट है तो 2, 3 कंपोनेंट है तो 3। क्लियर? अगर सपोज 3 कंपोनेंट होते और मुझे थर्ड कंपोनेंट C का निकालना होता तो x इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C अपॉन में Na प्लस Nb प्लस Nc। ठीक है, जैसे एग्जांपल मैं लेता हूं कि यहाँ पे, हाँ पहले इस वाले देख लेते हैं कि यहाँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर है और शुगर का मोल फ्रैक्शन निकालोगे तो शुगर को मैं S से डिनोट कर रहा हूँ, एक्स इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर 2 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स 2 प्लस 8 दैट इज 10, सो 1/5 इसका मोल फ्रैक्शन आ गया। ओके, ये शुगर का हो गया। वाटर के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर दैट इज 8 डिवाइडेड बाई 10, तो सिंप्लीफाई करोगे क्या हुआ 4/5। तो यहां से देखो इन दोनों को ऐड करो एक बार, जो इसका मोल फ्रैक्शन आया और जो इसका मोल फ्रैक्शन आया दैट इज 1/5 प्लस 4/5 इक्वल टू क्या आ गया 1। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ मोल्स आएंगे टोटल कंपोनेंट्स का वो हमेशा इक्वल टू 1 होना चाहिए। मोल फ्रैक्शन में हमेशा टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स जो आएंगे
टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स की मोल फ्रैक्शन वो ऑलवेज इक्वल टू क्या होगा 1। जैसे मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ 3 कंपोनेंट्स का। सपोज ए के मेरे पास 5 मोल्स हैं, बी के यहाँ पे 4 मोल्स हैं और सी के यहाँ पे सपोज क्या है सी के यहाँ पे क्या है 10 मोल्स। ठीक है, अब मुझे मोल फ्रैक्शन निकालने हैं तीनों के। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एक्स से इक्वल टू 5 अपॉन में तीनों का सम 5 + 4 + 10। एक्स बी इक्वल टू बी के लिए 4 5 + 4 + 10। सी के लिए एक्स इक्वल टू 10 अपॉन में 5 + 4 + 10। तो इसको सिंप्लीफाई करो, 5 + 4 9 10 19 5/19, ये 4/19 और ये 10/19 और तीनों का सम कर लो एक बार 10/19 + 4/19 + 5/19 दैट इज इक्वल टू 1। सो हमेशा मोल फ्रैक्शन में टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट का सम क्या आएगा 1। तो यहां से ये हमारा कंसंट्रेशन टर्म्स टॉपिक भी खत्म होता है। अब 2 टॉपिक रह चुके हैं, स्टोइकियोमेट्री एंड लिमिटिंग रिएजेंट। क्लियर, इस चैप्टर से अब 2 ही टॉपिक रह गए हैं, लिमिटिंग रिएजेंट एंड स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट। क्लियर है। तो ये कंसंट्रेशन पार्ट्स था जहां पे हमने मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन और उससे पहले हमने मास बाई मास परसेंटेज, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज एंड वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज एज वेल एज पीपीएम को भी हमने कैलकुलेट करना सीख लिया है। ओके।